हेलो एवरीवन। नाउ अब हमको पढ़ना है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमको पढ़ना है। तो मैट्रिस होता क्या है? मैट्रिस होता है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। इट्स ऑर्डर इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट डिफाइंस द एरे। सो मैट्रिक्स इज बेसिकली रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स का, और इनको हम डिफाइन करते हैं एम क्रॉस एन से या एन क्रॉस एम से। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ये 2 रो है और ये 3 कॉलम है, ऐसे इधर है। So we can simply say A equal to Aij. Aij basically calls entries of the matrix. I is row and J is column. Now, matrix can be used to represent simultaneous linear equations. Suppose these are the simultaneous equations. So how will represent it? So variable is x1, x2, x3, x4. So these are variables. These are their multiples. And this is the answer. So in the form of x equal to y, matrix can be represented. Now A is, what is A? A is coefficient of matrix. Now we can form the matrix B with the help of matrix A, and B is called augmented matrix of A. How we are making augmented matrix B? We are simply taking A and the solution. Now types of matrix. In exam many times questions are asked in multiple choice type. Define the matrix of row, column, and the various types of matrix. So we have to remember their properties and types. This is the row matrix, this is the column matrix. Null matrix where all elements are 0, all entries are 0. Square matrix, row equal to column. And diagonal matrix, when a matrix is called diagonal matrix when the elements on the diagonal are non-zero and elements at the other elements all are 0. Now identity matrix. Identity matrix is when I equal to say 1 and when I not equal to say all entries are 0. Symmetric matrix, very important. If Aij Aj means A12 equal to A21 is called symmetric matrix. Now we also remember these two things. This is called the leading diagonal and this is called the off diagonal. Off diagonal entries are mirror image to leading diagonal entries. ठीक है, मीन्स ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ठीक है, तो अपन बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना है, सेम लाइन वो पूछ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए ए जे इक्वल टू ए जे आई, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑल द लीडिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल आर सेम एज आर मिरर इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। नाउ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij equal to minus Aj means A12 equal to minus A21. This type of matrix is called skew symmetric matrix for all ING, and this will be 0 means all diagonal elements are 0. So for skew symmetric matrix, two conditions must be satisfied. All diagonal elements must be 0 and Ai is equal to minus Aj. Now transpose of a matrix. Suppose A equal to Aij and B equal to Bij. So B equal to Aij का transpose. We call B is transpose of A when B equal to Aj. और इसी Aj को अपना नाम दिया है Bij. ठीक है. So in proof, what we get? Aij equal to Bj I. So we say Aij equal to B का ट्रांसपोज। Aij का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? वापस वही आ जाएगा Aij का Aj, ये रहा Aj मतलब Bij. So both way you can prove it. Now we see if B equal to A transpose of A transpose, then A equal to B transpose means A transpose will be A. मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज 2 बार करोगे तो वापस मैट्रिक्स आ जाएगी।
ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो बी बनेगा वो ए जे आई बनेगा। ठीक है, मतलब ए में अगर कोई एलिमेंट A12 है तो बी में वो एलिमेंट A21 होगा। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं बेसिकली। नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या एक्लोन फॉर्म अपन बोलते हैं इसको। देखो अब दो ट्रायंगल बनते हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अब क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर में क्या होगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट बिलो द लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल कौन सा था, ये वाला लीडिंग डायगोनल। तो अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर, और लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना है ये लीडिंग ट्रायंगुलर होता है और ऑफ ट्रायंगल होता है, ऑफ डायगोनल होता है। तो लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो तो अपर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू ए जे एंड A डॉट A ट्रांसपोज इक्वल टू आई, so what we are left with aij 3 cross 3 and aj equal to I होता भी है जनरली। if mod of a मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a is 1 then we a is known as proper matrix। ठीक है ना, तो याद रखना है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 हो जाए तो एक बोलेंगे अपन प्रॉपर मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल का याद रखना है a ट्रांसपोज इक्वल टू I, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ कंजुगेट मैट्रिक्स बी इक्वल टू ए बार, सो ए जी का बार लगा दो। अब बार में क्या होगा, वही एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आयोटा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। डेगर मैट्रिक्स, सो डेगर इज दिस इज द डेगर। डेगर मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, है ना। अल्टरनेटिवली अगर पहले कॉन्जुगेट निकाल रहे हो फिर ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोर्ट निकाल रहे हो फिर इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको बोलते हैं डेगर मैट्रिक्स। यूनिटरी क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल में ट्रांसपोज आता है, याद रखना ये ऑर्थोगोनल है। और यूनिटरी में क्या आता है, डेगर आता है। यूनिटरी में क्या आता है, डेगर। सो u प्लस यू डेगर इक्वल टू आई, so u dagger u equal to I, so u dagger will be equal to u inverse, याद रखना है। ऑर्थोगोनल में क्या आएगा, a ट्रांसपोज a इक्वल टू I, और यहाँ क्या आएगा u dagger u इक्वल टू I, यहाँ से u dagger क्या आएगा, u इनवर्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिंपली इन हर्मिशियन मैट्रिक्स a इक्वल टू a का डेगर हो जाएगा। आइगन वैल्यूज हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। क्या रखना है, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, ये अपने को याद रखना है। इसके हर्मिशियन में क्या आएगा, a डेगर इक्वल टू माइनस a। व्हाट इज डेगर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड देन ट्रांसपोर्ट। सो इसकी हर्मिशियन की इमेजिनरी होती है, इसकी हर्मिशियन की इमेजिनरी होगी, और हर्मिशियन की होगी रियल। हर्मिशियन की रियल, इसकी हर्मिशियन की इमेजिनरी। नाउ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, खुद से मल्टीप्लाई करो और खुद ही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। पीरियोडिक में क्या होगा, वही a की पावर k प्लस 1 करो, k पीरियड हो जाएगा इसका, वही आ जाए तो क्या होगी, पीरियोडिक मैट्रिक्स। k पॉजिटिव नंबर। नील पोटेंट वो था आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मतलब सेम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो सेम आ जाए। ये तो आइडेम्पोटेंट और फिर नल। नल में क्या है, देखो नील मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स इफ a रेस्ट टू पावर k इक्वल टू 0, k पॉजिटिव इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स इज मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच a k इक्वल टू 0, है ना। ये इसकी इंडेक्स क्या होगी, इंडेक्स कि उस मैट्रिक्स की पावर क्या करें कि उस पावर को लगाने के बाद मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाए 0, तो हो जाएगी नील मैट्रिक्स, हो जाएगी इसकी इंडेक्स। आइडेम्पोटेंट में स्क्वायर। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, इनवॉलंटरी a स्क्वायर इक्वल टू I। इक्वल मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर ऑफ एंट्री भी सेम हो तो सेम मैट्रिक्स हो जाएगी इक्वल मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, मोड ऑफ a इक्वल टू 0, ये तो सबको आता ही है। सिंगुलर में क्या,
मोड जीरो हो जाए, सॉरी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, यहाँ मोड नहीं बोलते डिटर्मिनेंट बोलते हैं, तो क्या होगी सिंगुलर मैट्रिक्स को याद रखना है। सिंगुलर में क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट इन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, तो इसमें क्या रखना है, एम क्रॉस एन ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ओनली पॉसिबल इफ they both are of same order. Now any square matrix can be expressed as sum of two symmetric plus co-symmetric matrix. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में अपन डिनोट कर सकते हैं। अभी क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हो जाएगी, ठीक है, याद रखना है। नोट मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये तो है इसे, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स A equal to ABCD, and if we are multiplying the matrix with E, a scalar function, then matrix will be multiplied with all the entries। देखना, याद रखना, मैट्रिक्स सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन अभी पढ़ेंगे अपन नीचे, वहाँ का दूसरा होएगा, ध्यान रखना। मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है। नाउ इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई ऑफ ऑर्डर ओड, देन मोड ऑफ ए इज, मोड ऑफ ए निकालना है अपने को। ए सिमेट्रिक इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगी ए इक्वल टू, ये था ना स्क्यू सिमेट्रिक में, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। सो इसका मोड क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। अपन पढ़ भी लिया स्क्यू सिमेट्रिक में, देखो कहाँ गया, ऑर्थोगोनल ट्रायंगुलर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, जो मोड है वो जीरो हो जाएगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, जीरो होता है। मोड ऑफ ए जीरो है, मतलब ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मीन्स मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज। देखो इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज, इसको ओपन करेंगे तो ऐसे होएगा, उल्टा बोलता है ना, पहले इसका फिर लिखा। अब ए ट्रांसपोज क्या है, ए जे आई का इन्वर्स, और ए इन्वर्स क्या है, ए आई जे का इन्वर्स। अब इन दोनों में अपन क्या कर सकते हैं, आई जे और जे चेंज कर सकते हैं, है ना, या इन्वर्स लो या इन्वर्स लो, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको पहले लिखो इसको पहले लिखो, बाद में क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो ए आई जे इन्वर्स इक्वल टू ए जे आई का इन्वर्स मीन्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है, कौन सी आ रही है, सिमेट्रिक। ये अपने को याद रखना है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देखो क्या है मल्टीप्लिकेशन में, इफ़ ए इज दिस एंड बी इज दिस, एम क्रॉस एन क्रॉस प्री। अब देखो इन दोनों के कॉलम क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑर्डर बनेगा एम क्रॉस पी का। इफ़ यू वांट टू डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स दैट इज ए बी, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। ध्यान रखना है अपने को, नंबर ऑफ रोज मस्ट बी सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी। देखो यहाँ पे कितनी रो है, एन है, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, एन है, ये समान होना चाहिए रो और कॉलम। और जनरली मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का कम्यूटेटिव नहीं होता, याद रखना है, नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, ये हमको पता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है,
अब देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कोई से भी, ए नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यहाँ भी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और आई के इक्वल होगा। वो याद रखना है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को कैसे खोलेंगे, ए बी प्लस बी ए से, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए कभी 2ab नहीं आएगा। ठीक है, फॉर ए एंड बी इफ़ ए बी इक्वल टू 0 डजेंट मीन दैट आइदर ए और बी 0 है ना। अब याद रखते हैं अपन कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो एक 0 होता है, दूसरा 0 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं होएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि दो में से एक 0 ही हो, दो में से एक भी 0 ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ए बी इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब भी ये नहीं है कि तुम ऐसे ए काट दो और बी बराबर सी कर दो, जो नॉर्मल रूल है वो लागू नहीं होते। और ए बी रेस्ट टू पावर एन तभी होगा जब ए बी बराबर बी ए हो। अगर कम्यूट कर रहे हो तो ये सब खोल सकते हैं, उल्टा खुलता है। देखो अब क्या है, ए स्क्वायर ए कौन से मैट्रिक्स है, हाइट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। नल में क्या था, ए सी पावर ए के कि वो 0 हो जाए। अब अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स बाद वाले लेक्चर में पढ़ते हैं अपन। थैंक यू।